Some basic fundamental concept in this basically the interchangeability. The fundamental concept presented below for the some fundamental concept which are basics to all manufacturing activity. In this, a proper understanding these concepts is very useful and very helpful in selecting the manufacturing process that can be produce the desired workpiece at a minimum cost. तो ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट की मदद से आप सेलेक्ट कर सकेंगे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और साथ ही साथ डिजायर्ड वर्क पीस एट मिनिमम कॉस्ट पर। तो फर्स्ट आता है आपका फर्स्ट दैट इज योर इंटरचेंजेबिलिटी। फर्स्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इज इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी की बात करते हैं तो जो ग्रेटेस्ट एक्यूमुलेट्स of the 12th century are said to be interchangeable part manufacture and mass production, जो कि हमने अभी डिस्कस किया व्हाट इज द मास प्रोडक्शन। एंड interchangeable manufacture means that any part or component any part or component picked at a random from a manufacturer lot should fit and function properly with any other part with which it is required to be fitted। क्योंकि यहाँ पे बात की अभी फिटनेस की। fitted picked at a random from a lot of manufacturer at a different time या place even by a different worker on a different machine, बट ये रिक्वायर्ड होना चाहिए कि वो हम लोग प्रॉपर फिट कर सके, प्रॉपर फिट हो पाए जो भी हम लोग उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। The concept of interchangeability requires that each part or assembly going into a final product must be made of definite size, shape and finish specification। हमें ध्यान रखना है डेफिनेट साइज, शेप और फिनिश स्पेसिफिकेशन का। तो बात करते हैं कि बेसिक एडवांटेज क्या है इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग के। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेज इज दैट it makes it makes possible the standardization of products and methods of manufacture। सबसे पहला जो बेसिक एडवांटेज है कि इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग का जो एडवांटेज है कि इट मेक्स द पॉसिबल द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड methods of manufacturing। Second, it provides for ease of assembly and maintenance of product। Third, it allows mass production of product, thus making it possible to take advantage of economies of scale in terms of manufacturing cost and cost of raw material। यहाँ पे देखिए यहाँ बता दिया गया चीज़ें कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। Fourth, because of large volume of production, specialized process and machines can be employed, thus reducing manufacturing time and a cost per piece। Mass production process generally lead to be more uniformity of product and better product quality with the lower rejection rate। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो लोअर रिजेक्शन रेट आ रहा है। Sixth, mass production enables the manufacturing setups to acquire a certain degree of specialization and skills of fabrication with again leads to better quality and lower cost। तो यहाँ पे हमें better quality and lower cost। Seventh, जो mass production है of interchangeable parts का has made most items of human use available at reasonable cost and in large number of and in large number with assured quality, thereby improving standards of living all around। तो यहाँ पे जो जो बेसिक यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट होने चाहिए उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर को मतलब यहाँ पे यही है कि कोई भी पार्ट हम या कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम उसको पिक्ड रैंडम कहीं पर भी वो मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई भी उसको बना रहा है तो वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, वो फिट होना चाहिए जो भी उसके पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फंक्शन है। अगर वो फिक्स नहीं हो पाएगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो पाएगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर जो साइज़ होता है, मान लीजिए एक नट एंड बोल्ट है उसका एक साइज़ है तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग जो होगा आ, वो वहाँ पर प्रॉपर साइज़ होगा, उस प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग वो फिटनेस होगी उसकी। बात करते हैं अगर उसके बेसिक सिंप्लीफिकेशन की।
सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन की। तो कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया नोन एज द 3S। जब आप प्रोडक्शन लाइन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर, या इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप इन 3S के बारे में जानेंगे। 3S इज द 3S इज द simplification, 3S, first S for simplification, second S for standardization, and third S for specialization. Simplification, standardization or specialization, it is known as 3S, are closely integrated and lead to interchangeability and the cost reduction. These concepts can be effectively used in industry to minimize the unnecessary activities, reduce the inventory cost, simply controls and improve product quality. आगे बात करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये लीड्स करते हैं हायर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट। तो 3S था, उसमें पहला जो एस आता है, ये 3S हमारे लिए काफ़ी जानना बहुत ज़रूरी है। तो 3S में पहला आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की जो बात करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन एक हमारा एक प्रोसेस है। सिंप्लीफिकेशन इज एक प्रोसेस किसका, प्रोडक्ट एनालिसिस का, थ्रू जिसमें कि अननेसेसरी वैरायटीज़ और डिज़ाइन को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और केवल लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रेड्स या टाइप्स और साइज ऑफ प्रोडक्ट का जो क्या करते हैं, रिटेन रखते हैं। जो भी जितना भी अननेसेसरी होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। सेकेंड जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। पहले तो हमने सिंप्लीफिकेशन की बात की, लेकिन जब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, तो सेकेंड स्टेप में आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हमारा सेकेंड स्टेप है, किसके बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद। पहला सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन के बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। Standardization is the second step after simplification towards the interchangeable manufacture, having selected the varieties and grade of the product. तो यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, varieties and grade of the product to be retained as much of its manufacturing details are standardized possible. Since manufacturing involves a large number of decisions from selection of raw material to the process used for finishing, standardization of the sum of these items reduce the unnecessary repetition of work। जो कि यहाँ पे हमने देखा तो जिस तरह से अननेसेसरी वेराइटीज एंड डिज़ाइन को एलिमिनेट किया गया था। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। तो हम लोग स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिससे इन्वेंट्री कॉस्ट जो रिड्यूस हो सके, इंश्योर कर सकते हैं इंटरचेंजेबिलिटी को, और साथ ही साथ मेक्स कर सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेंस जो है वो आसानी से हो सके, ईजी हो सके। इसके अलावा हम आल्सो रिड्यूस करेंगे कंपोनेंट कॉस्ट को, सिंस स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, सिंस स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर बाय द मास प्रोडक्शन मेथड, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है मटेरियल्स का इंश्योर कर सकेंगे उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस एंड गारंटीज, जो उसका फेलियर फ्री ऑपरेशंस। यूज़ द स्टैंडर्ड methods of production enables comparison to be made of the standard and actual manufacturing time। इसका भी ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं जो पर्पस की, तो जो पर्पस है स्टैंडर्डाइजेशन का इज़ देयर फोर वन ऑन वन हैंड efficiency and economy in the use of human effort। यहाँ पे आप देख सकते हैं economy in the use of human effort and other economy of the material varieties and stock quantities। Standardization can be divided into the four categories। तो पहला आता है स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे यहाँ पे बात की गई बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन। जब बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग इन्वॉल्व होगा, दिस इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट और मेजर। इसमें देखेंगे वेट मेजर्स को देखेंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल में बात की जाए तो वोल्टेज की, फ्रीक्वेंसीज की, थ्रेडिंग प्रोफाइल, थ्रेड की प्रोफाइल की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे इसमें लिमिट और फिट का ध्यान रखेंगे, और टेस्टिंग प्रोसीजर्स, साइज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स जो हैं। और दूसरे वर्ड में बात की जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आइटम्स यूज बाय ऑल इंडस्ट्री। तो इसमें क्या क्या देख रहे हैं, बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन में उसका देखेंगे वेट एंड मेजर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, थ्रेड प्रोफाइल्स, लिमिट एंड फिट्स, टेस्टिंग प्रोसीजर्स, साइज ऑफ एक्यूरेसी, साइज ऑफ स्टेशनरी, ईटीसी। और जो ये स्टैंडर्डाइजेशन है वो इज़ डन बाय द नेशनल गवर्नमेंट और या इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू। सेकंड जो बात करेंगे, सेकंड हमारा जो होता है डायमेंशन स्टैंडर्डाइजेशन। डायमेंशन की जब भी बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये इसमें बात करेंगे, दिस इंक्लूड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, जैसे कि स्क्रू हो गया, नट हो गया और बोल्ट हो गया।
कीज हो गया, गियर होंगे, ईटीसी। हम लोग बात करेंगे मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन की। तो मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन में बात करेंगे, जिसमें भी अप्लाई टू टाइप्स क्वांटिटीज साइज शेप मटेरियल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें हम लोग जो देखेंगे इट ऑल्सो इन टूल्स के बारे में, लुब्रिकेंट्स कौन सा यूज़ हो रहे हैं, फ्यूल्स और अदर कंज्यूमल और नॉन कंज्यूमल गुड्स को भी कंसीडर करते हैं। बात करते हैं इसके फोर्थ, दैट इज़ योर प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे ये जो चीज़ें देखी थी 3S, दैट इज कैटेगरी। इन 3S देयर हैव अ सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इन दिस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन ये रिलेट करता है टाइम स्टैंडर्ड्स को, जो कि फिक्स करते हैं बाय अ गिवन इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन फॉर परफॉर्मिंग गिवन अ टास्क अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन में। दूसरा, रिपीटिव ऑपरेशन जो है, जैसे कि लेइंग आउट और साइज ऑफ पाइप की बात करें या पेंटिंग की बात करें, या स्पेसिफाइड एरिया वाइंडिंग अ गिवन साइज ऑफ मोटर, ओवरहॉलिंग अ मशीन या बेस्ट सिचुएटेड फॉर दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और ये जो स्टैंडर्ड्स है मे बी सेट फॉर ईच ऑपरेशन इंडिविजुअल या सेट बाय ऑपरेशन लीडिंग टू द इनडेफिनेटेबल जॉब्स लाइक ओवरहॉलिंग अ मशीन। और साथ ही साथ इट शुड बी मेंशन हेयर दैट स्टैंडर्ड वंस सेट should be periodically reviewed and revised it if necessary take full advantage and technological development in the area of field experience। तो हमें ये जानना जरूरी होता है 3S के बारे में, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया आपको इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी के साथ साथ इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, साथ ही साथ 3S कैटेगरी में सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सिंप्लीफिकेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन और डायमेंशनल स्टैंडर्डाइजेशन, और साथ ही साथ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। स्पेशलाइजेशन नेक्स्ट, दिस इज द वन योर स्पेशलाइजेशन के बारे में।